Hello, my dear students. Hope you all are doing well. I'm your chemistry teacher Diksha, and I welcome you all to our lesson number 4, Structure of the Atom. So, students, we have completed the understanding of this lesson, and now here we are to discuss some of the in-text questions related to this lesson. So, quickly take out your notebooks and please note down all the solutions and try to understand each of them carefully. Okay, so let's get going now. Let's see the first one. What are canal rays? So if you remember students, canal rays, these are the rays which led to the discovery of the positively charged subatomic particle known as protons. Okay. So what were these? These were the positively charged radiations or the stream of positively charged particles which led to the discovery of protons. Remember? Alright. Let's see the next. On the basis of Thomson's model of atom, explain how the atom is neutral as a whole. तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा थॉमसन्स मॉडल ने एक चीज बताई थी. क्या थी वो? न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. मतलब एटम में पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और उनके नंबर सेम है. मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. दैट्स व्हाई together the atom, because both these particles are same in number, so they cancel each other's effect, and that's why the atom is electrically neutral. So according to Thomson's model, an atom consists of positively charged sphere in which electrons are embedded in it, and the negative and the positive charges are equal in magnitude. The amount of positive charge is equal to the amount of negative charge, and that's why the atom is electrically neutral. Got it? Let's see the third. On the basis of Rutherford's model of atom, which subatomic particle is present in the nucleus? Okay, so which subatomic particle is present? As per the Rutherford's model, protons which are positively charged are present in the nucleus of the atom. Now remember students, हमने ये देखा था कि न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, बट स्टूडेंट्स जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तब तक न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे. सिर्फ हमें ये पता था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट? सो इसीलिए रदरफोर्ड ने ये देखा था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, विच इज ट्रू, बट न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, ये उसे नहीं पता था. व्हाई? बिकॉज न्यूट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. ओके, सो योर आंसर विल बी that according to Rutherford, protons, that is the positively charged particles, are present in the nucleus. Got it? Let's see the next. Draw a sketch of Bohr's model of atom with 3 shells. Now Bohr's model gave the shells like n equal to 1, k shell, l shell, m shell, n shell, and the nucleus is there right in the middle. Okay, this was his model. Now they are talking about 3 shells. तो यहाँ students आपका ये 4th shell है, ये आप skip कर सकते हो. Okay, because they have asked you about only 3 shells, right? तो आप m shell यानी कि n equal to 3 तक ही draw करेंगे. Got it? Please don't draw this 4th shell. Only these 3 shells are enough. Okay, let's see the next. What do you think would be the observation of alpha particle scattering experiment if it was carried by using a foil of a metal other than gold? मतलब गोल्ड के अलावा अगर रदरफोर्ड कोई और मेटालिक शीट लेता तो क्या रिजल्ट रहता? रिजल्ट सेम रहता स्टूडेंट्स. ठीक है, बिकॉज दैट रिजल्ट वाज व्हाट? दैट यू आर बॉम्बार्डिंग द मेटल फॉइल विथ हीलियम आयंस. ओके, स्ट्रीम ऑफ हीलियम आयंस आर बॉम्बार्डेड ऑन दैट मेटल फॉइल. ओके, तो मेटल फॉइल चाहे आप गोल्ड की ले चाहे आप किसी और मेटल की ले, आपको रिजल्ट्स वही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या देखा था रदरफोर्ड ने कि जो हीलियम के आयंस थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे. तो अगर आप कोई भी और मेटल शीट लेते स्टूडेंट्स यहाँ पे, सो दैट मेटल शीट, उस मेटल शीट में उस मेटल के पार्टिकल्स होते. अगर आप आयरन की शीट लेते तो यहाँ पे आयरन के एटम्स होते. ठीक है, तो आयरन के एटम्स में भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता था, है ना? पॉजिटिव चार्ज उसमें भी होता प्रेजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड, और हीलियम के आयंस जो उस पर बॉम्बार्ड हो रहे हैं वो डिफ्लेक्ट होते. दैट्स व्हाई द रिजल्ट वुड बी द सेम. बस क्या उसका एक कॉन्सेप्ट था, रदरफोर्ड सेड दैट
फॉइल शुड बी वेरी थिन, ठीक है। तो कोई भी आप मेटालिक फॉइल ले, अगर वो उतनी थिन आप बना सकते 1000 एटम थिक, तो आप कोई भी मेटल फॉइल यूज कर सकते थे, ठीक है। सो द आंसर इज on using any metal foil, the observations will be the same, would remain the same, as all the atoms would have the same structure. Got it? Now let's see the sixth one. Name the three subatomic particles. So we know that we have protons, electrons and neutrons as the subatomic particles, that is positively, negatively charged particles, and one is a no charge particle, or it's neither positively or negatively charged. Now let's see the next. Helium atom has the atomic mass as 4U and there are two protons. So what they are saying, 4U तो उसका क्या है, मास है, और उसमें दो प्रोटॉन्स है। आपको बताना है कि कितने न्यूट्रॉन्स है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स की जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, इनका जो एटॉमिक मास होता है, आप उसे मास नंबर भी समझ सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास मतलब कि जो न्यूक्लियस का मास है उसे ही हम एटॉमिक मास कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल होता है। सो 4U इज वट एवर द मास इज देयर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां दिए स्टूडेंट्स, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर गिवन टू यू। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 4U को क्या लिख सकते हैं, 4 is equal to 2 plus number of neutrons. The atomic mass is number of protons plus number of neutrons. Actually it is the mass of the protons plus mass of the neutrons, okay. पर हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोअर एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो हम इस 4U को हम मास नंबर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दैट्स व्हाई हीलियम एटम हैज 2 neutrons, 2 protons and 2 neutrons together give a mass of 4U. Let's see the next now. Write the distribution of electrons in carbon and sodium atom. तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टूडेंट्स आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है इन एलिमेंट्स का। सो द फर्स्ट 20 elements you should know the atomic number, the symbol, the electronic configuration of each. Okay? तो कार्बन के बारे में पूछा तो आपको पता होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. दैट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू 6, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इक्वल टू 6। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, द फर्स्ट शेल accommodates maximum of 2 electrons. So the K shell has 2 electrons and the remaining 4 electrons come into the L shell or the second shell. Got it? Now let's talk about sodium. So sodium has an atomic number of 11. So 11 means the number of electrons are also 11. So that means how will be the distribution? In the K shell I have 2, L shell 8 electrons. Total are 10. Okay, 1 is left, so that 1 electron goes in the third shell. Got it? Okay, let's see the ninth. If K and L shells of an atom are full, then what would be the total number of electrons? तो यहाँ स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद होना चाहिए। के शेल में अगर फुल है तो के शेल फुल कब होता है, व्हेन देयर आर मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो के शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, द सेकेंड शेल दैट इज द एल शेल कैन अकोमोडेट एट मोस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल है, क्योंकि आपको क्या लिखा है कि एल शेल भी फुल है। तो एल शेल फुल होगा मतलब आपके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो 2 + 8 हाउ मच इज इट, देयर आर 10 electrons in the atom. Now if I ask you what is that element, अगर मैं element का नाम पूछ लूँ तो आपको ये भी पता होना चाहिए that if there are 10 electrons, that means the atomic number for that element is 10. And what is that element? You should know the name. Alright? Let's see the next. How will you find the valency of chlorine, sulfur, magnesium? So again students, these 3 elements you should know the atomic number. Okay, सबके atomic number आपको पता होने चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उससे हम पता करेंगे वैलेंसी, राइट। So for chlorine students, first of all, if you remember, valency is the combining capacity of the atom of that element. मतलब कोई एटम और कितने एटम से कंबाइन कर सकता है केमिकली रिएक्शन के बाद और कितने एटम से वो कनेक्ट कर सकता है
और इलेक्ट्रॉन्स या तो दे सकता है या ले सकता है. सो ये जो वैलेंसी स्टूडेंट्स की क्यों होती है किसी एटम की, बिकॉज ईच एटम वांट्स टू अटेन अ स्टेबल ऑक्टेट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. ओके, सो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 17. मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17. प्रोटॉन्स भी 17 है. अब ये 17 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 in the K shell, 8 in the L shell and 7 in the M shell. So we can say that M shell or the third shell is the outermost shell for chlorine, right? तो outermost shell में जब 7 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि हम वैलेंसी फाइंड आउट करें तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को क्या चाहिए? ईदर इट कैन गिव 7 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बहुत मुश्किल होता है. अगर क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, सो इट हैज टू फाइंड 7 एटम्स. ओके, उन एटम्स को देना है तो 7 एटम्स उसको ढूंढने होंगे. सो दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर क्लोरीन. तो क्लोरीन के लिए ईजी क्या है? To receive 1 electron and complete its octet. So 7 plus 1 यहां हो जाएगा 8, right? तो इसका मतलब क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई स्टूडेंट्स? 1. That means it will gain 1 electron. Okay, let's see for sulfur. Now sulfur has an atomic number of 16. That means number of protons 16, number of electrons also 16. How are these 16 electrons distributed? In the K shell 2, L 8 and M shell has 6 electrons. Now in the outermost shell, we will just see the outermost shell, it has 6 electrons. To complete the octet, how many electrons it needs? 2. तो octet complete करने के लिए सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, राइट? तो इसका मतलब सल्फर की वैलेंसी क्या हो गई? 2. मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. ओके, कहीं से लेगा, राइट? इट विल, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कहीं से, तभी इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट. सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो वैलेंसी क्या हो गई? 2. लेट्स सी द लास्ट वन, मैग्नीशियम. नाउ मैग्नीशियम हैज एन एटॉमिक नंबर 12. दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हो गए. ये 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 8 2. द लास्ट आउटरमोस्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब स्टूडेंट्स मैग्नीशियम क्या करेगा? आउटर मोस्ट शेल को चाहिए 8, है ना, ऑक्टेट चाहिए. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम को 6 डिफरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन लेने होंगे. तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है मैग्नीशियम के लिए. इससे अच्छा मैग्नीशियम क्या करेगा? ये आउटर मोस्ट शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 एटम्स को दे देगा. ठीक है, जब ऐसा वो करेगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो अब उसका आउटर मोस्ट शेल क्या बन जाएगा? एल शेल. और एल शेल तो फुली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है. सो फॉर मैग्नीशियम इट विल गिव अवे इट्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ओके, ऑक्टेट उस केस में एल शेल उसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा. ठीक है, सो दैट मीन्स द वैलेंसी फॉर मैग्नीशियम इज 2. इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू 2 atoms. Okay, all right students, so this was a very good question. Please keep a note of it. Let's see the next. If the number of electrons in an atom is 8 and the number of protons is also 8, then what is the atomic number and what is the charge on the atom? Students, number of protons आपको already यहाँ mentioned है 8, और हम जानते हैं कि number of protons ही क्या होते हैं? atomic number. तो atomic number तो क्या हो गया? 8 ही हो गया. ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 है. अब यहाँ पे चार्ज पूछा है. तो स्टूडेंट्स, जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है ना, 8 and 8. सो दैट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज. जितना पॉजिटिव चार्ज है उस एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज है. दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल करते हैं. इसका मतलब वो एटम पे कोई चार्ज नहीं है. ओके, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज इट हैज नो चार्ज. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल, फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेबल आपको दी है, देखते हैं ऑक्सीजन. सो फॉर मास नंबर वी नो दैट मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं. सो ऑक्सीजन के लिए देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये रहे 8
एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इस टेबल में आपको दिए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑल्सो 8. सो व्हाट विल बी द मास नंबर फॉर ऑक्सीजन? 8 plus 8, that is 16. Let's see for sulfur, okay? Sulfur, if you see, the atomic number or the number of protons is 16. And the number of neutrons is also given to you as 16. So again, the mass number for sulfur will be 16 plus 16, that is 32. For oxygen, it was 8 plus 8, that is 16. Got it? So mass number से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर आपको पता है तो आप मास नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? Okay, let's see the next. For the symbol H, D and T, tabulate the three subatomic particles. Okay, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स H, T और D क्या है? हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के. तो आपको बताना है कि कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बताना है इन ईच केस. सो इफ आई टॉक अबाउट प्रोटियम, दैट इज हाइड्रोजन, सो इट इज व्हाट? 1H1, मतलब कि एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है. तो एटॉमिक नंबर 1 है मतलब प्रोटॉन्स 1 है, और एटॉमिक नंबर अगर 1 है, प्रोटॉन 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसके इक्वली होता है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है. मास नंबर 1 है. नाउ स्टूडेंट्स, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है? 0. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे है निल और 0, राइट? इफ आई टॉक अबाउट ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम है 2H1, मतलब कि जो एटॉमिक नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1. ओके, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो वही रहेंगे. फर्क कहां आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, ठीक है? यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 हो गया. क्यों? क्योंकि उसका मास नंबर 2 है. तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, राइट? ट्रिटियम में स्टूडेंट्स, ट्रिटियम में प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पे दिस इज 3H1. ओके, सो ट्रिटियम में मास नंबर यहाँ पे है 3, राइट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो वही रहेंगे, 1 and 1. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे इट इंक्रीजेस टू 2 बिकॉज मास नंबर इज व्हाट? number of protons plus number of neutrons. So 1 + 3, 1 + 2, that will be equal to 3. Got it? So this was all about hydrogen, protium, deuterium, tritium. So this one is a very important question because you should know these numbers. Okay, subatomic particles in all the isotopes of hydrogen. Got it? All right, let's see the next. Write the electronic configuration of any one pair of isotopes and isobar. तो यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम्पल लेना है स्टूडेंट. सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप्स क्या थे. द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है स्टूडेंट्स. आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही रहेगा, ठीक है? आइसोबार्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगा क्योंकि आइसोबार्स तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होगा. से एग्जांपल इज फॉर आइसोटोप. दिस इज फॉर आइसोटोप. सो वी हैव 2 आइसोटोप्स फॉर कार्बन, कार्बन 12 एंड कार्बन 14. अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम है 6. इसका मतलब कार्बन के दोनों आइसोटोप्स के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है. तो जब आप 6 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इन द K शेल वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन द L शेल वी हैव 4. कार्बन 14 में भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. K शेल वी हैव 2, L shell we have 4 electrons. Got it? But isobars में क्योंकि ये atoms of different elements हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अलग होगा. डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है आइसोबार्स में, सेम मास नंबर होता है, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही पता करना है और वो तो अलग है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैल्शियम एंड आर्गन, ये आइसोबार्स है. यहाँ पे देखो मास नंबर सेम है 40, atomic numbers different है 20 and 18. That means argon has 18 electrons and calcium has 20 electrons. तो ये 20 electrons calcium में कैसे distributed है? 2, 8, 8, 2. Okay? और argon में किस तरह से distributed है students? 2, 8, 8. Got it? So this is how they are distributed in each.
Alright students, so here we come to the end of this session of the in-text questions. Hopefully students, now you have all the solutions and now you know how to write the solution for each question, right? So hopefully whenever you get such questions later on, you will be able to solve them easily. Thank you so much for watching. Take care.